Today's session for Sashi Foundation is on the career counseling for civil engineering. Let me take this session in a way that I am planning to take it. First 15 to 20 minutes, let me explain you all about civil engineering, what is the eligibility, what we do, what are the prospects for you to move for the specialization, your jobs and other things. And later, last 10 to 15 minutes, I plan to take for the questions. Before that, let me introduce you to me. I am Priya Nikam. By education, I am a civil engineer. I have done my courses from NECMARF in construction project management. Then I have done a lot of other things with regards to quantity surveying from rigs, and then mentor management and the other courses from Harvard. Then one of the course for the foundations in civil engineering and other things from Texas University. So these are what I have done as a studies, and for last 14 years I have been working in this field, mainly with architects, IPC companies, and program management and other things are those works that I have done over last 14 years over here. Currently, I am working with a company called Sankalpan Infrastructure. It's a Mumbai-based architectural firm, and they are for last 25 years in this field. And it's more into corporate interiors and architects. So that's where my specialization is. I work in corporate interior fit-outs, in project management, and the site delivery. That's me. Coming to civil engineering. So the main thing when you go for civil engineering, it's not just a civil engineering of constructions of dam or the roads or the building. There is a wide range of scopes with civil engineering. When you start, once you are in the course and all, there you can go for multiple options. It's like construction management, geotechnical surveying, bridge engineering, tunnel engineering, quantity surveying, project management, then irrigations and the water surface, railways, highways, oil and gas pipelines, cost consultancy, coastal and ocean engineering is also a part of civil engineering. You need to complete first the basic courses, the basic engineering, and then you can go for the specialization into this. So there's a wide range of options opens up for the people who are interested in going into the fields with the construction lines and the other things, urban planning and all. It won't go for architecturals or interiors. For architecturals and interiors, you have to do your base course for architects and then for interior designing. Even civil engineers, after doing the law, can be a lawyer in the corporates and all, where today is the need of the time for the IPCs and the other companies. So these are basic options to study further and bring your careers in civil engineering. What are the eligible criteria if you see to go for? You can go and achieve working, start from after your 10th, you can do your diploma. If you have done your 12th in your junior college, you can go for BTechs, then you can go for MTech. While for BTechs and all, you have different kind of JEE mains and JEE advanced, MHCET, KCET, and the other exams that you have to give as an entrance exam. You have the courses and then other people, classes and all we can start with. इसके बाद आप लोग कर सकते हो एमटेक, बीटेक के आपके होने के बाद में उसमें 8 सेमेस्टर्स के रहते हैं आपका फुल टाइम अंडर ग्रेजुएट कोर्स. फिर आपका एमटेक का है, दैट इज़ अ 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज आपके लिए है. तो ये आपके ऑप्शंस है अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग करना है. अगर आपको 10th के बाद करना है तो आपको डिप्लोमा करना है, उसके बाद आपको बीटेक करना है, उसके बाद आप एमटेक कर सकते हो. और अगर आपको अपने जूनियर कॉलेज की है तो आप 12th के बाद में एंट्रेंस एग्ज़ाम्स दे सकते हो और फिर आप बीटेक के बाद में एमटेक के लिए जा सकते हैं. तो दिस आर द बेसिक वे हाउ यू गेट योर एडमिशन्स. एमटेक के लिए और बीटेक के लिए जो एलिजिबिलिटीज़ है मैं उसके लिए आपको बोल देती हूँ. बीटेक को मैंने आपका बता दिया आपकी एलिजिबिलिटीज़ क्या है. आपको साइंस स्टूडेंट्स होना है, आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम्स देने हैं. एमटेक का भी आपको वैसे ही है, आपने बीटेक पास किया होना चाहिए, मिनिमम परसेंटेज एग्रीगेट मार्क्स रहते हैं उसके. फिर आपको गेट एग्ज़ाम्स की मेरिट बेस में होना चाहिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसे गेट की वो सब आपको देनी पड़ेगी. एंड दैट्स you need to be a science student over there. That's for MTech and BTech. Diploma after 10th you can go and do.
So this is how you come to the course and work. So now अभी टॉप एंट्रेंस एग्जाम्स जो है सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो मेनली है जो आपको देनी पड़ती है, जो मैंने पहले भी बताया, फिर से एक बार दोहरा रही हूँ, हर स्टेट का उनका CET रहेगा, वो आपको देना है। फिर गेट है, JEE मेंस है, JEE एडवांस है, PIT SAT है, KCET है। ये मैंने बेसिक 5 या 6 है जो आप दे सकते हैं। फिर IITs और उसके लिए जाने के लिए आपके ये एग्जामिनेशंस का वो है। और कॉलेजेस, यू हैव कॉलेजेस मोस्टली अक्रॉस ऑल स्टेट्स, जहाँ पे एजुकेशनल हब है। पूना बोलिए, हैदराबाद बोलिए, नदियाद बोलिए, गुड़गांव बोलिए, बेंगलोर फॉर द सेक, आपके वहाँ पे इंजीनियरिंग की काफ़ी अच्छी कॉलेजेस आ रही है। और हर साल, हर 4-5 साल में अगर आप देखेंगे तो जो न्यू कॉलेजेस अभी स्टार्ट हुई है, वो कॉलेजेस के परफॉर्मेंस और उनके प्लेसमेंट फॉर द सेक वी से काफ़ी अच्छे हैं। द स्कोरिंग इज़ मोर गुड। द स्कोरिंग रेशियोज अगर आप देखेंगे तो यू हैव टू चेक इट ऑन साइट ऑन विच कॉलेज यू वांट टू गो। और आपके फ़ीस का क्या स्ट्रक्चर है, हर कॉलेज की डिफरेंट फ़ीस स्ट्रक्चर्स है, फ्रॉम 3.5 lakhs to 7 lakhs 8 lakhs तक भी जा रहा है। तो कॉलेज आप जो पिक करते हैं वो आपको देखना है। जैसे जस्ट टू टच अपॉन सिविल इंजीनियरिंग में क्या क्या सब्जेक्ट्स आपको आते हैं सेमेस्टर वाइज, आई वोंट गो इन अ डीप, वो फ्यू सब्जेक्ट्स जो आप सोच सकते हो कि आने वाले हैं आपके कोर्सेज में, फॉर विच यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड इज नॉट रिक्वायर्ड, बट दिस इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन कि आप ये सारे सब्जेक्ट सीख सकते हो। दैट्स द रीज़न मैंने कहा था आपको अलग अलग ऑप्शंस है। आपके सेमेस्टर्स वाइज रहते हैं ये सारे कोर्सेज। फर्स्ट सेमेस्टर, एवरी सेमेस्टर इज 6 months, एवरी ईयर यू हैव 2 semesters। तो आपका इनिशियली जो फर्स्ट आपका ग्रेड बीटेक में यहाँ आता है, तो आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स 1, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सब भी उसमें रहेगा, मैकेनिक्स रहेगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स के बारे में आपको रहेगा, आपको प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स वो भी रहता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर आपको लेटेस्ट स्टेजेस में, सेमेस्टर्स में आपको सॉफ्टवेयर सिखाया जाता है, तो ये सब उसमें रहता है। आपको वर्कशॉप भी रहता है जिसमें आपको मेटलर्जी फॉर उन सब चीज़ों के बारे में भी एक सेशन रहता है, वेर यू वर्क ऑन लिथ मशीन्स। फिर आप कारपेंट्री के जॉब्स करते हैं, फिर आप ब्लैक स्मिथिंग का रहता है। सो दिस आर जस्ट टू गिव यू अ जनरल व्यू इन द स्टार्ट, इन द फर्स्ट सेमेस्टर, फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर, कि आपको क्या क्या आपका सिविल में इन्वॉल्व रहेगा। आपका कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी रहता है, मटेरियल मैनेजमेंट रहता है, स्ट्रक्चरल स्टील्स, फिर आपका रेनफोर्स कंक्रीटिंग, फिर आपका रहता है इरिगेशन, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल वाटर मैनेजमेंट, फिर आपका रहता है सॉलिड मैकेनिक्स, फिर वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट विल बी सर्वेइंग। सर्वेइंग क्या है, आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा रास्ते पे बहुत से लोग एक बड़ा सा ट्राइपॉड पे एक इंस्ट्रूमेंट से लेके लेवलिंग्स करते हैं। तो सर्वेइंग में 1 और सर्वेइंग 2 में आपको डिफरेंट काइंड ऑफ लेवलिंग्स और ये सब सिखाया जाता है। मैथमेटिक्स रहेगा पार्ट 2 पार्ट 3 तक, दैट्स अ डिफिकल्ट वन। फिर आपको सॉइल मैकेनिक्स रहता है, सॉइल के वेराइटीज़, फिर आपका जियो टेक्निकल के बारे में रहता है, दैट्स अबाउट योर अर्थिंग, योर सबस्ट्रेट क्रॉप। और फिर बहुत सारे आपको प्रोजेक्ट्स रहते हैं जहाँ आपको लाइव यू हैव टू डू रोड प्रोजेक्ट, यू हैव टू डू सम architectural project like a bungalow, buildings and a lot of things are there, जहाँ आपको ये सब सेमेस्टर 3-4 के बाद में आपको करने पड़ते हैं। आपको आफ्टर सेमेस्टर इन 3rd 4th आपको सेमेस्टर्स में सॉफ्टवेयर जो हम आज यूज़ कर रहे हैं वो सब भी इन्वॉल्व रहता है। जैसे कि द बेसिक सॉफ्टवेयर वी यूज़ इज ऑटोकैड, फिर उसका आपको रहेगा IT एप्लीकेशंस रहेगा, इवन आप लोगों को C++ और अलग लैंग्वेजेस जो है जिसमें आप प्रोग्राम कोडिंग कर सकते हैं आपके स्टील स्ट्रक्चर्स उसके क्वांटिफिकेशन के लिए, वो भी आपको सिखाया जाता है। सो दिस आर अ लॉट ऑफ IT रिलेटेड एंड द सॉफ्टवेयर रिलेटेड। अगर आप इसमें आगे और करना चाहते हैं तो आपको प्रोस्पेक्टिव और डिज़ाइन ये रहता है, जो आप 3D Max और अलग सॉफ्टवेयर है उसमें आप सीख सकते हो, स्पेशलाइज कोर्सेज रहते हैं। फिर आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के रिलेटेड सब्जेक्ट्स रहते हैं, हाउ यू मैनेज एंटरप्रेन्योरशिप भी उसमें रहता है एक सब्जेक्ट आपको। और सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपका टाइमलाइंस, स्केड्यूल जो बोलते हैं हम, डिलीवरी प्रोजेक्ट लाइंस बोलते हैं।
वो बनाना, उसके अलग अलग सॉफ्टवेयर, अलग अलग वे ऑफ वर्किंग हैं, वो सब आपको सिखाया जाता है कि कैसे यू कैलकुलेट, हाउ यू वर्क, फिर क्वांटिफिकेशन रहता है। एक बिल्डिंग बना रहे, उसमें कितना स्टील लगेगा, कितना सैंड लगेगा, वाटर कंटेंट लगेगा, टाइम कितना लगेगा, कितने रिसोर्स लगेंगे। सो देयर इज अ सब्जेक्ट जो इससे डील करता है और आपको उसके टेक्निक सिखाता है, उसके फॉर्मूलाज रहते हैं जैसे आप कैलकुलेट करते हैं। टुडे वी हैव अ सॉफ्टवेयर, हम जब उसमें फीड कर देते हैं, पर यहाँ ये बेसिक रहेगा, आपको उसके बैक एंड डिटेल्स भी रहेंगे और आपको सॉफ्टवेयर में भी सीखने के जैसा रहेगा। तो दिस इज ऑल यू विल बी लर्निंग इन योर सिविल इंजीनियरिंग बीटेक और एमटेक में। आपके थीसिस बहुत रहेंगे, पेपर्स लिखना रहेगा आपको, और उसके बाद में प्रोजेक्ट्स बहुत रहेंगे। दिस आर ऑल रिलेटेड टू दिस। इफ़ यू वांट टू गो फर्दर एंड बी अ स्पेशलाइज, लाइक स्ट्रक्चरल इंजीनियर बनना है आपको, स्पेशलाइजेशन इन स्ट्रक्चरल, तो आपको बीटेक के बाद में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के लिए करना है। तो ये सब आपके अलग अलग स्पेशलाइजेशन है, बहुत से अलग अलग मैनेजमेंट कॉलेज, इवन IITs है जो अभी ये सारे प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं उनके स्टूडेंट्स के लिए। IIM में भी बहुत सारे मैनेजमेंट रिलेटेड प्रोग्राम्स है, कंस्ट्रक्शन, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट्स वगैरह, दैट आर ऑन द लेटर स्टेज, विल बी हेल्पफुल टू यू टू गो और स्टडी। These are the things that we do in India as well as बाहर भी है। अगर आप बाहर अप्लाई करना चाहते हैं तो you have to see for the grade, the college ranking overall और उसकी फीस स्ट्रक्चर्स and what are the subject you are going। अगर मैनेजमेंट का आप लोगों को करना है तो मैंने पर्सनली हार्वर्ड और वहाँ से किया हुआ है, तो I'll prefer when you go 10 years down the line or 5 years down the line after your एजुकेशन एज वेल एज योर एक्सपीरियंस, तो आप ये कोर्सेज कर सकते हो जो आपको बेनिफिट होगा टू क्लाइंब योर कॉर्पोरेट लैडर्स, जहाँ आप कॉर्पोरेट फील्ड और उसमें काम कर रहे हो तो वो वहाँ पे आपको हेल्प करेगा। फिर आप और भी बहुत सारे अर्बन प्लानिंग्स के हैं, वो सारे कोर्सेज आपको फ्रांस, इटली, UK, हांगकॉन्ग, वहाँ पे आपको ऑफर होते हैं कॉलेजेस में जो आप सीख सकते हैं। एंड दे ऑल्सो हेल्प विद प्लेसमेंट आजकल इज़ अ कॉमन फैक्टर विद ऑल द कॉलेजेस, जहाँ पे आपको ऑन ग्राउंड बिफोर योर फाइनल एग्जाम्स आपके जॉब्स के कंफर्म अपॉइंटमेंट लेटर्स आपके हाथ में आ जाते हैं। तो दिस इज़ ऑल ऑन एजुकेशन। अगर हम जॉब और इसके प्रोस्पेक्टिव्स के बारे में सोचते हैं तो इसके जॉब्स आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके गवर्नमेंट सेक्टर्स में, PWD में, और इसमें आपको काफ़ी जॉब्स है, आपको वो एग्ज़ाम्स क्लियर करने हैं, अप्लाई करना है, तो आप वहाँ पे भी PWD और इसमें जॉब्स है आपके लिए जो आप अप्लाई कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर्स में भी बहुत है, ट्रेडिशनल कंपनीज़ है जहाँ पे आप वर्कआउट कर सकते हैं, IPCs है, कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ है, खुद का खुद आप स्टार्ट कर सकते हैं। मटीरियल टेक्नोलॉजीज़ पे जो मटीरियल सप्लाई होते हैं वो कंपनीज हैं जहाँ पे दे नीड सिविल इंजीनियर्स एंड ऑल। सो लेट्स गो। गवर्नमेंट मैंने बताया, मटीरियल्स के रिलेटेड अगर हम सोचते हैं तो आपको सिरामिक टाइल्स है, सिरामिक सैनिटरी वेयर्स है, फिर एवरीथिंग दैट गोज इन अ बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन मटीरियल्स की कंपनीज में आप लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है अगर आपका बेंड मोर इज टूवर्ड्स कंस्ट्रक्शन एंड ऑल। और उसके बाद में आपके हाई निकिता, आई विल टेक योर क्वेश्चन आफ्टर वंस आई कंप्लीट दिस, एज आई सेड आई विल बी टेकिंग क्वेश्चंस लेटर। उसके बाद में आपके IPCs कंपनी से जो बाहर की कंपनी से दे आर सेटअप ओवर हियर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो करते हैं, कॉस्ट कंसल्टेंसी है, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है, तो वहाँ पे भी वो लोग प्लेसमेंट में से ग्रेड्स और सबको लेते हैं ताकि दे गिव सर्विसेज टू ऑल द कंपनीज एंड क्लाइंट्स, जहाँ पे कॉर्पोरेट इंटीरियर्स है, बेस बिल्ड है, प्रोग्राम मैनेजमेंट है, जहाँ पे कंटिन्यूस रिफर्बिशमेंट एंड डेवलपमेंट है। तो वो भी एक फील्ड है जहाँ पे यू गेट अ जॉब क्वाइट ईजिली। आप आपका खुद का मटीरियल सप्लायर्स या लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स या डिज़ाइनर और द स्ट्रक्चरल इंजीनियर और द प्लम्बिंग इंजीनियर, आपके सर्टिफिकेट आने के बाद में आप यू कैन स्टार्ट योर ओन ऑन दैट। उसके बाद है आपके लिए वर्किंग विद डिज़ाइनर्स, इंजीनियरिंग फर्म्स अक्रॉस द ग्लोब, वहाँ पे भी आप काम कर सकते हैं। इंडियन कंपनीज है, L&T है, टाटा है, बिरला है, आदित्य बिरला है, सिम्प्लीटेक्स है, जय इंफ्रास्ट्रक्चर्स है। सो
आपके लिए बहुत ऑप्शंस है अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर्स में नहीं जाना चाहते तो। गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी सिर्फ PWD नहीं है, आप रेलवेज में जा सकते हो, नेशनल हाईवे डिपार्टमेंट्स में है आपके लिए, हाइड्रोलिक, इरिगेशन, वाटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, मास्टर प्लानिंग डिपार्टमेंट में काम के लिए है, सर्वेइंग ऑफ इंडिया, सर्वेइंग कंपनीज, और ये सब भी आप खुद का स्टार्ट कर सकते हैं। सो दिस इज मोर ऑन टू जॉब्स एंड ऑल व्हाट यू वांट टू नो। इज देयर एनीथिंग एल्स में और कुछ आप सुनना चाहते तो जस्ट मैसेज करिए, और एल्स मैं निकिता के क्वेश्चंस को आंसर करना शुरू करती हूँ। आई गेस आई हैव टेकन 15 मिनट्स ऑन एक्सप्लेनिंग एग्जैक्टली व्हाट यू कैन डू। I'll take Nikita your question. Which are the entrance exam for civil engineering for top colleges? आपके एंट्रेंस एग्जाम सिविल इंजीनियरिंग के लिए टॉप कॉलेजेस जो भी है, एक तो आपका CET बेस है जो भी स्टेट में आप रह रहे हो, अगर आप फिर आपको JEE मेंस है, एडवांस है, और बाकी तो ये मेन एग्जाम्स है। यू हैव टू प्लान कि आप क्या करना चाहते हो, कहाँ जाना चाहते हो। अगर IITs और उसमें जाना चाहते हो तो आपके अलग है, स्टेट का बेसिक CET मेन एग्जाम है वो आपको देना है। MTech वगैरह कर रहे हो तो आपको गेट वगैरह भी देना है। I hope I answered your question, then you can just let me know, Nikita. और जब आप ये एग्जाम्स देते तो आपको एक क्रेडिट रेंज रहता है AICTE के अकॉर्डिंगली, 150 to 160 के रेंज में आपको अंडर ग्रेजुएट के लिए ये क्रेडिट रेंज में रहना चाहिए, ताकि आप फिर वो एग्ज़ाम्स आप क्लियर कर सके और आपको आपके कॉलेजेस में एडमिशन्स मिल सके। ओके, भक्ति दावोलकर, हाउ टू डील विद द स्ट्रेस इन COVID-19? सो COVID-19 स्ट्रेस डीलिंग with regards to construction engineering, construction field and industry, मैं आंसर करने की कोशिश करती हूँ। for past 3 months जैसे ये कंडीशन स्टार्ट हुई है कोविड का, गवर्नमेंट एज वेल एज द master planning body as well as the commissions and other companies across have come up with different strategies and all, especially to prevent the to take a preventive measure to confine the containment and to stop the more spread of the infection. तो उसमें इन लोगों के बहुत सारे डील्स है, जैसे गवर्नमेंट ने भी बोला है सेफ डिस्टेंसिंग रखो, प्रॉपर PPE यूज़ करो, इफ़ यू आर सिक एंड ऑल रिपोर्ट, डोंट गो टू द प्लेस। तो यही सब है। तो हम एक बेसिक एग्जांपल आपको देती हूँ, इसमें हम लोग मोस्टली ऑन साइट्स पीपल आर कंसर्न, सो स्टैगर्ड एंट्री, टाइम लिमिट है, सोशल डिस्टेंसिंग रख के काम करना है, तो लिमिटेड वर्क फ्लोज विल बी वर्किंग इन शिफ्ट्स, देयर विल बी कंटिन्यूअस डिसइंफेक्टेंट ड्राइव्स गोइंग ऑन, सो दैट फर्स्ट शिफ्ट आने से पहले एरिया क्लीन है, डिसइंफेक्टेंट किया है, वो जाने के बाद में वापस ब्रेक में क्लीन किया है, तो नेक्स्ट शिफ्ट आती है। तो दैट वे आर सम ऑफ द थिंग्स फॉर पीपल टू कम इन। तो उन लोगों की एंट्री एग्जिट पॉइंट्स फिक्स है, यहाँ पे स्पेशल स्पेस और कन्फाइंड स्पेस बनाया जहाँ पे उनको सैनिटाइज किया जाएगा और उनको चेक किया जाएगा, जैसे थर्मल स्क्रीनिंग है, उन्हें कोई और हेल्थ और रेस्पिरेटरी इश्यूज है या नहीं वो सब देखना, और अवेयरनेस स्प्रेड करना। लाइक हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट्स पे एवरी कंपनी यूज टूल बॉक्स टॉक्स, जिसे हम सेफ्टी टॉक्स बोलते हैं, जो टॉक्स के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने हाउ टू बी सेफ ऑन साइट एंड हाउ टू बी सेफ विथ योर इक्विपमेंट्स एंड टूल्स बोलते हैं। तो वहाँ पे एक और ड्राइव है COVID-19 के रिलेटेड, हाउ टू अवेयरनेस ऑफ दिस वायरस, हाउ इट अफेक्ट्स, what you can do and how you can safeguard yourself and the people around you to prevent this. So ये सब drives पे initiatives है, सब लोग ले रहे हैं, people are working because people are trying to live with it. I hope I answer your question, Bhakti. There's a question from Anushka. What unique challenges do you foresee in your projects? So Anushka, that's a very interesting question. I have done quite a lot of different kind of projects in the 14 years of my life. At every stage, there were the unique challenges that I have faced. But today I'll talk about the latest one that I remember quite well.
वन इज व्हेन आई एम डूइंग, जब आप रिफर्बिशमेंट मतलब रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट्स करते हो, नए प्रोजेक्ट नहीं है, एग्जिस्टिंग ऑफिसेस है, उसी को आपको वापस फ्रेश लुक देना है, जैसे उसका फेस लिफ्टिंग करना है या मेकअप करना है, तो वो बहुत ही डिफरेंट चैलेंजेस रहते हैं, क्योंकि बिजनेस एज यूजुअल रन होना रहता है, बिजनेस डू नॉट वांट टू शट, आपको लिमिटेड टाइमलाइंस रहता है, अगर उनका 24/7 वर्किंग आवर्स नहीं तो आपको लेट नाइट्स काम करना रहेगा। फिर फॉर एग्जाम्पल मुझे स्पेस ए क्लीन करना है, स्पेस भी उससे अटैच है, तो मुझे स्पेस बी को बैरिकेड करना है ताकि मेरा डस्ट, मेरी वहाँ पे जो मैं आवाज़ करूँ वो स्पेस बी में ना जाए। मुझे वहाँ पे काम करने वाले लोगों की कंफर्ट देखना है, क्योंकि दे आर द वन हु आर अर्निंग द मनी एंड बिजनेस, सो बिजनेस को मुझे इफेक्ट होने नहीं देना है। फिर मेरे लोग हैं, जैसे कि मेरे प्रोजेक्ट मैनेजर्स है, मेरे कंस्ट्रक्शन मैनेजर्स है, मेरे लेबर्स है, मेरा मटीरियल मूवमेंट है साइट पे, जो लेट नाइट यू ऑल्सो नो कि नॉइजेस नहीं कर सकते अपने गवर्नमेंट रूल से। लेबर्स को सुबह वो लोग कहीं और साइट पे काम करके रात को आपके साइट पे आएंगे तो मैक्सिमम 1-2 बजे तक रात को काम करते हैं, देन दे आर स्लीपी, उनका काम का जो क्वालिटी रहता है वो खराब हो जाता है, मिस्टेक्स होते हैं, एरर्स होते हैं। सो दिस आर द काइंड ऑफ प्रोजेक्ट चैलेंजेस जो ये प्रोजेक्ट्स पे होते हैं। यू हैव टू बी वेरी मच इनोवेटिव और मोटिवेटिव सो दैट यू कैन स्पीक। यहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत काम आती है कि आप आपके लेबर्स को कैसे मोटिवेट करते हो। आप उनको 1.5 टाइम्स एडिशनल पेमेंट करते हो क्योंकि वो रात को काम करते हैं, पर उन्हें आपको दिन में कहीं और साइट पे जाके काम नहीं करवाना है और आराम करो ताकि आपके साइट पे प्रोडक्टिविटी इफेक्टिव रहे। तो आपको उस तरीके से उनको बात करके उन्हें अट्रैक्ट करना है। फिर आपको आपके बिजनेस, आपके क्लाइंट, आप उन लोगों को भी संभालना है, उन्हें भी ये अंडरस्टैंडिंग देनी पड़ती है आपको, जहाँ आपको डायलॉग से कम्युनिकेशन करने पड़ते हैं इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर, जिससे उन्हें पता चले कि ये काम चल रहा है। तो शायद मैं कल सुबह आऊँ तो मेरा डेस्क एकदम मिरर क्लीन नहीं रहेगा, थोड़ा डस्ट के पार्टिकल्स इवन क्लीन होने के बाद में भी एटमॉस्फेयर में होने से वो धीरे से आके एसी ऑन होने के बाद में मेरे डेस्क पे जम जाती है। सो आई शुड नॉट मेक अ ह्यू एंड क्राई। थोड़ा सा रात को यहाँ वहाँ है तो शायद लोग घूम रहे हैं तो कुछ तो यहाँ से चीज़ें चेंज हो गई है जो हमें पता नहीं है, तो मुझे उसके लिए एस्केलेशंस नहीं करने की मेरी चीज़ें गायब है। तो यू हैव टू कीप अ डायलॉग्स। हर इंसान अलग रहता है, हर इंसान के थॉट प्रोसेस अलग रहते हैं, तो आपको उन्हें सिर्फ कम्युनिकेट करके आपका काम बताना है। सो दैट्स अ यूनिक चैलेंज इन गेटिंग द ब्राउनी पॉइंट्स फ्रॉम एवरीवन। आई थिंक आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। Is there anything further questions or anything you want me to talk, Harshil? Harshil, can you just ping me? Okay, there's one more question. What are the extra skills that a civil engineer should have? I guess all the people on this earth who are working for a specific work should need some extra skills of being very polite, respectful to others, and humble. So for civil engineers, it's purely your passion. आपको क्या करना है, आप क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। If you have a passion for your skill, you will be learning your extra brownie points that you want to achieve and grow. आपके टारगेट्स क्या है? मेरे लिए टारगेट है कि मुझे कॉर्पोरेट लैडर पे चढ़ना है, एकदम ऊपर टॉप मैनेजमेंट में जाना है। So I am improving myself and giving myself the education and the exposure that I need to climb that corporate ladder. So it depends. आपका पैशन क्या है, आप किस में जाना चाहते हो। Okay. There's one more. What is the job stability in this field? If you are with the government, you have a good job stability and you get a VRL also if you kind want to go out.
even in the other fields, when you are with the private firms and all, it depends on your performance. There is no guarantee for the life, as we say, so there is no guarantee for any job, but it's a far better on your performance, what you do and how you grow, which company you are choosing. Be very mindful when you choose for your job applications. आपको आपका पैशन क्या है, क्या आप वो कंपनी के एथिक्स, पॉलिसीज, विजन्स, मिशन से आप अपने आप को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. अब मेरे जैसा बंदा जो आई एम अ वेरी स्लो और लेजी पर्सन, मैं जल्दी जॉब चेंज नहीं करती हूँ. मैं 5-5, 6-6 साल एक ही कंपनी में काम कर रही थी ऑल माई कैरियर. सो इट डिपेंड्स हाउ यू आर. आई होप दैट क्लैरिफाइज यू, निकिता. Anushka's question is there, what are the better career options after getting a bachelor's degree in civil engineering? There's a lot of options. आप कॉन्ट्रैक्टिंग साइट पे स्टार्ट कर सकते हो, बेस बिल्डिंग. आप कॉर्पोरेट आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिजाइनिंग फर्म्स के साथ QS, क्वांटिटी सर्वेयर करके भी जॉब स्टार्ट कर सकते हो. आप साइट इंजीनियर करके भी जॉब स्टार्ट कर सकते हो. आप फिट आउट्स में जा सकते हो. आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो. आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनीज है, वो लोग स्पेशली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिग्रीज वगैरह मानते हैं, पर उन्हें भी साइट इंजीनियर्स की ज़रूरत रहती है, तो आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं. आप आपका खुद का मटेरियल सप्लाई एंड चेन का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. आप अपना लेबर कॉन्ट्रैक्टिंग का स्टार्ट कर सकते हैं. आपका मिनिमम स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग वो सब आप करना चाहते हो, तो आप स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स के साथ काम कर सकते हो. तो ये बहुत से ऑप्शंस है आपके पास कि आप जॉब स्टार्ट कर सकते हो. आई होप दैट हेल्प्स अनुष्का. there's 2 more. What are job opportunities? I just explained about that. What are different fields in civil engineering? Yeah, that's my favorite. I would love to talk about the different fields in civil engineering. सिविल इंजीनियरिंग में आपको बहुत कुछ है. सबसे पहले आपका कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वाटर इंजीनियरिंग है, ब्रिज इंजीनियरिंग है, टनल इंजीनियरिंग है, अर्बन प्लानिंग है, क्वांटिटी सर्वेइंग है, स्ट्रक्चरल है, रेलवेज है, एनवायरमेंटल के रिलेटेड है, हाइड्रोलिक्स है, ट्रांसपोर्टेशन से, हाईवे इंजीनियरिंग से, जियो टेक्निकल और सर्वेइंग भी एक पार्ट है सिविल इंजीनियरिंग का. फिर कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी एक पार्ट है सिविल इंजीनियरिंग का. एट सम पार्ट, नॉट कम्प्लीटली, लेकिन फायर प्रोटेक्शन इंजीनियरिंग भी विद रिगार्ड्स टू प्लम्बिंग का जो आता है वो सिविल में आता है, पर फायर का पूरा आपको MEP मैकेनिकल और उसमें ज़्यादा है. प्लम्बिंग इंजीनियरिंग भी आपका एक पार्ट है सिविल के बाद में. फिर है आपका इरिगेशन, फिर आपका है कॉन्ट्रैक्ट्स मैनेजमेंट, ऑयल एंड गैस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, कोस्टल एंड ओशन इंजीनियरिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग. I hope I answered you. Okay, what is your success mantra? My success mantra, I don't know, I have not thought about that, but what I feel is, if you're passionate enough to get the works done, be determined और अपना काम आप करो with 100%. उसमें फिर आप ये मत कीजिए कि मैं 90% दे रहा हूँ या 50% दे रहा हूँ. Just focus and give your 100%. That's what there is no shortcuts. All your hard work is what is going to pay you. So you have to be that, and that's what been working for me. Give your 100% and no shortfall in that. That's it. There's one more. Which field is best in civil engineering? Anupriya, for this it depends. आपको क्या passion है? Every person is different in passion. मेरे लिए management is more management and cost related work. Cost consultancy is my passion. तो मेरे लिए वो सबसे अच्छा है. All fields are good in their respective stuffs. ब्रिज इंजीनियरिंग, टनल इंजीनियरिंग में भी इंडिया में आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज नहीं है, पर यू गो टू चाइना, यू गो टू ऑस्ट्रेलिया, यू गो टू अदर कंट्रीज, आपके लिए वहाँ पे वास्ट अपॉर्चुनिटीज है. इंडिया भी पिकअप कर रहा है, जैसे कि अभी जम्मू कश्मीर का टनल बना है कोकन रेलवे के बाद में. कोकन रेलवे वाज द पॉइंटर ओवर दैट, तो इसमें भी पिकअप हो रहा है. हमारा ज्योग्राफी जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है और नॉर्थ इंडिया है एकदम टॉप पार्ट, वहाँ पे टनल्स और इसका बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू अदर पार्ट्स. इफ़ यू सी कोकन का एक होने के बाद में,
Still we are not picking up in Northeast India, but over the time वहाँ पे बहुत से plans government is planning to come up even with some of the airports and all. So there's a lot of things over there coming. There's one more from Nikita. How was your experience throughout this journey? What kept you motivated? The experience was mixed. Sometimes it was good, sometimes you feel low, but then you pick it up. For me, the motivation was, to be very true, traveling. I love traveling, and this is the job that gives me the ample of opportunities to go to any place. For me, I have traveled to so many places. I would have not done it if I was not a civil engineer, or I would have not been working with these companies. So this is what kept me motivated. It helps me learn new things, know people, know different culture, and makes me understand how we can be inclusive. That's what exactly I can bring on a table on a management field. How we can be inclusive and do not discriminate people. Okay, there's a one more. Certificate is required to take the government contract. If yes, we can get it. You need your license. आपको आपका स्ट्रक्चरल इंजीनियर और या सिविल इंजीनियर आपको आपके लाइसेंस की ज़रूरत है, और उसके बाद में आपको यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ विद PWD एज अ ग्रेड A, ग्रेड B कॉन्ट्रैक्टर. अगर आपको कॉन्ट्रैक्टिंग गवर्नमेंट के लिए करना है, उनका CPWD और स्टेट के अलग अलग साइट्स है जहाँ पे उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस है, रिक्वायरमेंट्स है, आपको वहाँ पे रजिस्टर होना है. और जब भी उन लोग उनके वर्क्स और ये उनके साइट पे डालते हैं टेंडर्स, तो यू हैव टू अप्लाई फॉर इट. So this is how you get it. Anupriya, the top colleges for pursuing civil engineering. That should not be fair on me to say which are the top colleges, but there are quite a lot of colleges. You can take IITs also, and you can take other colleges also in your state if you check it out. Because right now I may not be knowing much of the names of the colleges. I have completed my engineering in 2004. But for management, currently in India we have IITs are also started giving a project management, construction management courses. NICMAR is there in Pune base camp, and they have other campus in Hyderabad also. This is one of the, for post civil you want to go for construction management or other things, you can go for NICMAR. Okay, there's one more. What subject you think as students should be masters in it for present scenario? Okay. फॉर मी पर्सनली मुझे लगता है आपको आपका लीगल जो कॉन्ट्रैक्ट्स है, आपका मैनेजमेंट स्किल्स, रिसोर्स और मटेरियल मैनेजमेंट, कॉस्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसके ऊपर आपका पूरा प्रोजेक्ट डिपेंड होता है, और टाइम मैनेजमेंट. ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है. अपार्ट फ्रॉम योर बेस मेन कोर्स, लाइक आपका टेक्निकल स्पेशलिटी जो जिसमें भी है, उसके बाद में ये 3-4 चीज़ें हर इंसान को, हर किसी को, स्टूडेंट्स को भी अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, ये कि आप कैसे मैनेज करोगे. दैट्स वेयर आपका सक्सेस डिपेंड करता है. आई होप आई आंसर्ड यू. दैट्स वन मोर. व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट्स इन NICMAR? Bhushan Pon. Bhushan, there is a NICMAR gives the placement opportunities for the students at the end of your courses before your final exams. So there are a lot of IPCs, then client companies, Aditya Birla sort of companies, L&Ts, Shapoorji Pallonji and other more companies जो वहाँ प्लेसमेंट इंटरव्यूज में से स्टूडेंट्स को पिक करते हैं, एंड यू दे हैव डिफरेंट पैकेजेस जहाँ आप स्टार्ट करते हो. I hope that answers you, Bhushan. Is there any other question that I have missed, or we are good now? Harshil? Okay. Thanks. Harshil, can you just let me know if this is good or we have to continue? Okay, there's one more question. What will be the situation of civil engineering after COVID-19? We are not going to stop the construction activities.
there will be people who want to buy houses, there will be government who are going to get our infrastructure developed, there will be companies who are growing, but the way right now how we were working, or maybe that will only change after COVID-19. We have to do a lot of changes, such as way of working on the site, क्योंकि COVID-19 के साथ we have to live and we have to ensure कि जो more work on site happens because of labors, उन लोगों को सेफ रखना है, खुद को सेफ रखना है, तो उन लोगों के लिए क्या प्रोविजंस हम लोग दे सकते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स हम कर सकते हैं, और कैसे हम लोग काम करेंगे। मे बी हमारे जो प्रोजेक्ट्स 2 महीने में हम कंप्लीट कर देते हैं, शायद हमें उससे शायद थोड़ा वक्त और लगेगा, क्योंकि हमें बहुत सारे सोशल डिस्टेंसिंग, बहुत सारा स्क्रीनिंग, ये सब मैनेज करना है, लोगों को अवेयरनेस स्प्रेड करना है। जितना लोगों में अवेयरनेस रहेगा उतना मिनिमलिस्टिक pressure will be on the system. There won't be any change. Only a slowdown might be there, but there won't be a change. जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो भी चलेंगे, नए प्रोजेक्ट जो पाइपलाइन में हैं वो भी आएंगे, बस स्लो डाउन थोड़ा सा रहेगा। The teams, architects, firms, governments and all are working कि इसे कैसे मिटिगेट किया जाए, so that minimalistic impact हो लोगों पे। I hope I answered you. Okay, there's one more. Do we need any prior training before getting jobs as civil engineer? Not necessary, निकिता। आप लोगों को एज अ ग्रेजुएट्स में भी आप लोगों को जॉब्स मिलती है, जहां आप जूनियर इंजीनियर, ट्रेनी इंजीनियर्स करके कंपनी ज्वाइन करते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, सो इज लाइक एन एडेड फेदर इन योर हैट। थैंक यू। I guess we are done with our questions. And if you need anything further to note, you can connect to Harshil. I can help you on with what are the other subjects, or what are the other colleges, or how you prepare for it, and the other job opportunities on the companies and all. What we can do, you can put the questions to Harshil, and then I can respond to that. Thanks, Meenakshi, for your comment. I'll take this as a compliment for me. Thank you very much. Bye all.